Everyone, I hope you all are well. So today is 11th July. It is celebrated as World Population Day. So I thought that why should I not made a video on this day? And I have attended a webinar yesterday organized by Social Research Foundation. The topic was how to control population in current scenario. So I have learned so many things from there, and by inputting some own points I thought that I should made a video. That's why I made this video. So to know anything, first of all we should know that why this particular day is observed as World Population Day. So in 11th July 1989, the world population has reached around 5 billion. That's why United Nations Development Program proposed this day as World Population Day, so that people can be make aware of the importance of family planning, the maternal health, the poverty, the gender equality, and so on. So we all know that a population is a factor which can play a very important role in the development of or in the backwardness of any nation. So that's why this day was celebrated and was is celebrating every year, so that people can be aware of this thing. In terms of India, we all know that India is the second largest populated country in the world after China, and its population is around 139 crore. So we can understand that how much the population control is important for India. Even a UN report expected that the Indian population will exceed China by 2027 if we will not control it. And even in terms of China, they have even third rank in the area wise, but we are in seventh. So the density of population is also much more higher in India than China. So if we want to develop our country, if we want to make India as developed country, we have to control our population, because population is a factor which directly or indirectly affect the every sector of society. We can even learn from China that they have imposed a very strict rule on population, and now they have much more control their population. But we Indians are just waiting that when the government will impose any strict rule, and then we will just follow them. But as we all know that we are the India has population explosion, and we know that how much it is important to control. So why we will not start by ourselves? हमें अपने घर से स्टार्ट करना होगा कि अगर हमारे घर से अगर हम सब लोग अपने अपने घर से शुरू करें तो ये पॉपुलेशन बहुत हद तक भारत में कम जाएगा. इवन हम जब देख रहे हैं कि हमारे घर में ऐसा कुछ हो रहा है, लाइक पीपल आर जस्ट वांटिंग अ बॉय फॉर बेबी बॉय. उनकी 3-4 बेटियां हो चुकी है, बट उन्हें एक लड़का चाहिए. दैट्स वाई वो लोग बच्चे किए जा रहे हैं, और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कहीं ना कहीं इससे पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो ही रहा है. लोगों में इक्वालिटी की भावना होनी चाहिए कि हमें एक बच्चा होगा, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दैट डजेंट मैटर. हमें उसकी देखभाल अच्छे से करनी है. वी हैव टू ग्रोन अप दोज दैट चिल्ड्रन इन अ राइट मैनर. हम अगर उसकी परवरिश अच्छे से कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं. उस जगह अगर हमारे 3-4 बच्चे हैं तो हम हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, बट हम उस एक बच्चे के रिसोर्सेस को 4 बच्चों में डिवाइड कर दें, तो ना वो बच्चे अच्छा लाइफ पाएंगे, और ना ही हमारे कंट्री के लिए वो कहीं ना कहीं लाभप्रद नहीं होने वाला है. लाइक अब हम क्या हो रहा है ना कि हमारे डेंसिटी वेरी हाई. आर पॉपुलेशन इज़ as much as more than any country, like by density also it is very high. And like it impacted the whole society in terms of why our population is increasing. First of all, we should know about the reasons, and the second one, the solution. So the reasons, the main reason is illiteracy, because we are not literate as that much. Even like we see that in urban areas the population ratio is less than in rural areas. Why? Because rural people are illiterate, they are less aware about these things. Girls are not that much of aware about that, how to control this population, and how much important to use this contraceptives and all. So
awareness is the most important thing and most important need for Indian society. And the patriarchal mindset, our mindset is that beta is more important, like girls, अगर हमारे पास बेटियां हैं तो बेटियों को एक इन्फीरियर क्वालिटी और इन्फीरियर नज़रिए से देखा जाता है कि बेटे ही तो वंशधर है। उस चक्कर में लोग 4-5 बच्चे किए जा रहे हैं, बट लेकिन लोगों को ये नहीं लग रहा कि वो 4-5 का देखभाल तो उन्हें ही करना है। लोगों को ये चीज़, जब तक हमारे सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी नहीं आएगी तब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न यही है, लोग लिटरेट होने के बाद भी ये सोच रखते हैं कि हमें बेटे की ज़रूरत है। उस वजह से लोग कितने ही सारे बच्चे को जन्म दे रहे हैं, बट उसका उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन्हें चाहिए एक बेटा। सो द माइंडसेट पैट्रियार्कल, हमारी जो माइंडसेट है हमारी सोसाइटी की, हमारी इंडियन सोसाइटी की, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बड़ी भूमिका निभाती है। लाइक हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें एक पोता चाहिए, उसके चक्कर में लोग कितने सारे बच्चे कर रहे हैं, उसका कोई ये नहीं। बट अब इस चीज़ को बदलने के लिए लोगों को अपने घर से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये एक चीज़ है जो बहुत आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे लाइक बुजुर्ग हमारे ट्रेडिशन से चला आ रहा है। सो इस चीज़ को ख़त्म करने में वक्त लगेगा, और इस चीज़ की शुरुआत लोगों को खुद के घर से शुरू करनी होगी, तभी ये ख़त्म होगा। हम सुबह से शाम तक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, हम बेरोज़गारी के रीज़न पे नहीं जा रहे कि क्यों, क्योंकि हमारे पास उतनी नौकरियाँ नहीं है जितनी हमारे पास पॉपुलेशन है। बिकॉज इफ़ वी क्रिएट 1 लाख ऑफ जॉब्स, द पॉपुलेशन विल इंक्रीज 2 लाख। So how can that will be fulfilled? Even अगर हर एक को जॉब देना चाहे सरकार, तो सरकार ये दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि हमारे पास उतनी नीड नहीं है जितना हमारे पास सप्लाई हो चुका है। सो हमें ये चीज़ सोचना होगा कि कहीं ना कहीं अगर हम इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, देन हमारे पास जितने भी पॉपुलेशन, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल कैन गेट अ जॉब। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल एक रीज़न होता है जिस वजह से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है, क्योंकि हमारे पास बहुत पॉपुलेशन हो गया इन कंपैरिजन टू आवर रिसोर्सेज। Even like poverty, the main reason of poverty is the population, because हमारे पास जब बहुत पैसा है नहीं और हमारे पास बहुत लोग हो गए, बहुत सारे बच्चे हो गए, तो कहीं ना कहीं वो गरीबी को बढ़ावा देंगे, क्योंकि हम उस समय ना अच्छा खाना खा पाएंगे, ना हम कुछ पैसे सेव कर पाएंगे। क्योंकि हम अगर कुछ पैसे कमा रहे हैं 100 रुपये, तो हमें उस 4 बच्चों को खिलाना है। अगर उस जगह मेरे 1 बच्चे होंगे तो शायद मेरे पास और 20 रुपये मेरे से रोज़ सेव हो जाए। तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी का एक बड़ा कारण पॉपुलेशन ही है, क्योंकि लोगों में अनइक्वालिटी, इवन सोशल इनइक्वालिटी, वाई इट हैपन्स, बिकॉज कुछ लोग कम में बहुत ज़्यादा कमा ले रहे हैं, और कुछ लोग के कमा कर भी उसे सेव नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई दे आर बिकमिंग पुअर एंड पुअर डे बाय डे। सो पॉवर्टी का मेन रीज़न एंड सोशल इनइक्वालिटी का मेन रीज़न, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में ना लोग पैसे से ही लोगों को आंकते हैं। सो इफ़ यू हैव मनी देन यू विल गेट लाइक some name in your society, but if you are poor then no one is going to give any importance to you. So हमें इस चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि हम अगर इतने कैपेबल नहीं है कि हम 2 बच्चों को देखभाल कर सकते, तो हम क्यों 2 बच्चे करेंगे? हम 1 बच्चे करेंगे, हम उसकी ही देखभाल अच्छे से करेंगे। लोगों में ये चीज़ होनी चाहिए। सो सॉल्यूशन अबाउट फॉर द कंट्रोलिंग दिस पॉपुलेशन, हमें इसके लिए सॉल्यूशन, हमें बहुत लोगों को सॉल्यूशन पता है, लोग फिर भी सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं जानना। Solution is the main thing, that we need a strong government rules. There is no one can substitute, nothing can substitute this thing, because government की जब तक एक strict policy, एक strict rule नहीं आएगी, तो लोग इस चीज़ से डरेंगे नहीं। जब तक लोगों में कुछ बड़े बड़े लोगों में कोई रूल नहीं लाया जाएगा कि अगर वो इतने 1 से ज़्यादा बच्चे या 2 से ज़्यादा बच्चे करते हैं तो उन्हें ये सब चीज़ झेलनी पड़ेगी, जब तक ऐसा कुछ नहीं आएगा तब तक लोग इस चीज़ को हल्के में ही लेंगे। सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड आफ्टर दैट वी शुड अवेयर दिस, बिकॉज अगर हम अवेयर है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आसपास की सोसाइटी में लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि अगर आप ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही हानिकारक है, ये लोगों के लिए भी बर्डन
बर्डन, खुद के लिए बर्डन है, सोसाइटी के लिए बर्डन है। हमारे पास ऐसी चीज़ों का अवेयरनेस का बहुत कमी है, क्योंकि हम अब अगर अर्बन एरियाज़ में देखते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली पॉपुलेशन इज़ मच मोर कंट्रोल, बिकॉज लोगों के पास इतना समय भी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर भी है, वुमेन आर लिटरेट देयर, लोग अपने लाइफ को लेविस बनाना चाहते हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि वो ज़्यादा बच्चे करें। बट इन टर्म्स ऑफ गांव एंड रूरल एरियाज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लिव इन बैकवर्ड प्लेसेस और इन रूरल और इन विलेजेस एरियाज़, सो हमें उनके बारे में सोचना है, क्योंकि उनके पास इतना अवेयरनेस नहीं है। उनके हिसाब से है कि अगर वो ज़्यादा बच्चे करेंगे तो घर परिवार में ज़्यादा कमाया आएगा, बट आपको ये सोचना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो बच्चे कर रहे हो वो प्रोडक्टिव ही निकले। इवन आपको टिल लगभग उन्हें भी 14-15 साल लगते हैं कोई भी काम में घुसने के लिए, तब तक तो आप उनको पाल रहे हो, तो वो तब तक तो आपके ऊपर बर्डन ही है। और आफ्टर दैट वो कैसे बनेंगे इसका भी आपके पास कोई ये नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा ही या बनेगी ही, ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये चीज़ सोचना है कि मेरे पास एक बच्चे हो, 2 बच्चे हो, मैं उसे ही अच्छे से रखूँगा, क्या ज़रूरत है कि हमें 4 बच्चे चाहिए। लाइफ में बहुत कुछ है इसके अलावा भी, लोगों में ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि लोग गाँव में ना, लोग लड़कियों को शायद दे आर लाइक फर्टिलिटी मशीन, लाइक लड़कियां एक सिर्फ का काम है घर में खाना बनाना और बच्चे पैदा करना, इससे ज़्यादा महिलाओं के पास तो कोई काम ही नहीं है। और महिलाएं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें उतनी एजुकेशन कभी मिली ही नहीं। कहीं ना कहीं इसका भी कारण पॉपुलेशन है। एक घर में लोग 4 बच्चे हो रहे हैं, उसमें 3 लड़कियां 1 लड़के, लोग लड़के को अच्छे से पढ़ा देंगे, लड़कियों को कुछ 19-20 पढ़ा के बस शादी करवा देंगे। तो लड़कियां कभी उन चीज़ों के बारे में सोची ही नहीं, लड़कियों को उन बारे में पता ही नहीं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग कंट्रासेप्टिव्स। और कहीं ना कहीं ये पूरी सोसाइटी ही उनकी माइंडसेट को ऐसा बना देती है और वो इस चीज़ को सच्चाई समझ के बैठ जाती है। तो उन्हें अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को अपने घर से, लाइक लड़कियां ही हमेशा लड़कियों की दुश्मन रही है। एक घर में उस बहू की दुश्मन उसकी सास ही क्यों होती है? उस सास को पता रहना चाहिए कि वो एज बीइंग अ वुमेन उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए एक महिला के साथ। बट महिलाओं में ही लगता है, महिला हर युग में महिलाओं के लिए दुश्मन बनी रही है। तो अगर आप खुद अवेयर हो तो आप कोशिश करो कि आप अपने फैमिली में सबको अवेयर कर सकें, आप अपने सोसाइटी में लोगों को अवेयर कर सकें कि अगर आप कम छोटा परिवार रहेगा तो आप ज़्यादा खुशहाल रह सकते हो। आफ्टर दैट एजुकेट योर गर्ल्स। बच्चों को एजुकेशन चाहिए, बट चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दैट डजेंट मैटर, यू हैव टू एजुकेट योर गर्ल्स। बिकॉज अगर लड़कियां एजुकेट रहेगी तो समाज की आधे से अधिक प्रॉब्लम वो ऐसे ही ख़त्म कर देंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इंडियन सोसाइटी में कि लड़कियां उतनी एजुकेशन नहीं पा रही जितना उन्हें ज़रूरत है। Even in a report it was found that a girl with class 10th degree and a girl with graduation both have different fertility ratio, because a girl with graduation degree they have less fertility in comparison to the 10th class. So we can see that if she will educate, she will get the education, she will know that how much it is important, how the importance of family planning she will know. Even she will she can aware their in laws that if we do so then what will be the problems we can face in future. So education is the most important key for controlling this population. एंड अनदर पॉइंट इज़ स्टॉप चाइल्ड मैरिज। कहीं ना कहीं अगर आप एक लड़की की शादी कम उम्र में करा रहे हो तो उनमें फर्टिलिटी एज बहुत दिन तक रहेगा। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये भी एक पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने का एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। कहीं ना कहीं अगर एक लड़की एक एज में शादी करती है देन शी कैन गेट प्रेग्नेंट फॉर 2 or 3 टाइम्स। बट अगर आप लड़कियों की शादी कम एज में करा रहे हो तो मे बी वो लाइफ में ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि उनकी एक एज से पहले उनकी शादी करवा दे रहे हो आप लोग, और उनमें उतना अवेयरनेस भी नहीं है और वो दैट मच मैच्योर्ड भी नहीं है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में समझ सके। तो चाइल्ड मैरिज को रोकना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इवन इट इज़ अ सोशल क्राइम। इसकी ये इलीगल हो भी सरकार के द्वारा, बट
फिर भी लोग छुप छुपा कर ये कर रहे हैं, अभी भी ये एग्जिस्ट करता है हमारे सोसाइटी में। सो अगर इसे हमें जड़ से ख़त्म करना है तो इसे भी हमें अपने लेवल से शुरुआत करनी होगी कि अगर हम कहीं अपने आसपास देख रहे हैं कि किसी इंसान या किसी लड़की की शादी कम उम्र में हो जा रही है, बिकॉज दैट मच एज इज़ नॉट, सी इज़ नॉट मैच्योर्ड फिजिकली मेंटली बोथ। सो हमें इस चीज़ को रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे और क्या होता है ना कि हमारे सोसाइटी में बच्चियों को ऐसे ही माइंडसेट बना दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें कम उम्र में शादी, घर में काम वाम सीख लेना होगा, तुम्हें खाना बनाने सीखनी होगी, क्योंकि तुम्हें तो यही काम करना है फ्यूचर में। तो लड़कियों के माइंड में भी एक शादी को लेके एक ब्यूटीफुल इमेज तैयार हो जाता है कि शादी ये वो, बट वैसा कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ उन्हें सिखाएगा कौन? जब उन्हें आप एजुकेट करोगे, उन्हें एजुकेट कीजिए, उन्हें सोसाइटी की सच्चाइयाँ बताइए कि कितनी सारी चैलेंजेस में भी इन फ्यूचर यू कैन फाइंड। सो द ओवरऑल द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइक हमारे बच्चियों को हम उतना एजुकेशन ही नहीं दे रहे कि वो सब कुछ के बारे में समझ सके। इन टर्म्स ऑफ बिहार, ये चीज़ देखा गया है कि बिहार में जब आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ सच रूल्स इन पंचायत इलेक्शंस, लाइक इफ़ यू हैव मोर देन 2 children you can't give the even fill the application for the election. It has been controlled much, like a government. Even nowadays you can hear about that population policy of यूपी गवर्नमेंट। योगी जी एक पॉपुलेशन ला रहे हैं कि अगर आपके पास 2 से अधिक बच्चे हो गए हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इवन आप पंचायत इलेक्शंस एंड ऑल, आप उन सब में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाली पॉलिसी आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ओवरऑल नेशन। इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में इस चीज़ पर काम किया जा रहा है और बहुत सारे स्टेट में शायद इसे अप्लाई किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस कम से कम इस डर की वजह से लोग इस बारे में सोचेंगे। क्योंकि लोगों में जब तक इस चीज़ को लेकर डर नहीं आएगा कि हमें इस चीज़ पे कंट्रोल करना होगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें बहुत तरह की नुकसान झेलनी पड़ेगी, तब तक लोग नहीं सुधरेंगे। क्योंकि हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा ही ना, हम भारत लगते ढीठ इंसान बोलते हैं, उस तरह के इंसान है कि हमें सुधरना नहीं है, हम अपने आप को बदलाव नहीं करना चाहिए। हमारा अभी भी माइंडसेट वही है कि वंशधर लड़के ही है, इस सोच में हम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। लाइक हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और हमारे एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड देयर। लाइक जिस लैंड में 3 लोग प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, उस लैंड में 6 लोग प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। सो उन 3 लोगों की प्रोडक्टिविटी इज़ लाइक लेस, लेस क्या, इट इज़ लाइक ज़ीरो। उनके वो नहीं भी करे और करे, दैट डजंट मैटर। सो दिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एग्जिस्ट इन इंडिया, एंड कहीं ना कहीं इसके कारण भी पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारे पास जब अधिक पॉपुलेशन हो जाएगी तो जब काम नहीं है तो लोग कम एरिया में ही ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल इट इज़ द फैक्टर विच अफेक्ट द होल सोसाइटी in terms of current scenario. Like in pandemic situation, we even India have witnessed the highest newborn babies last year from March to December. We see that when it is a very critical situation, like in pandemic, for a pregnant woman to visit hospital, and to, because at time she has more possibility of get infected, but at that time we Indians are uses our time in reproductible function, and think that if she will get any infection, then the both because the mother and the newborn baby in her belly both can be affected by by this infection. So we should be aware about that. Even government should also impose a rule, like this contraceptive things should items should be in essential things, because in COVID-19 it is also a reason why these things more happen, and it should be made a essential item by government also, so that people can use it more and more, so that population can be controlled, and we will be a good position in the world.
when we can control our population. So until that we have to struggle for that. Even overall population should be controlled by just not one person, by the individual person. If they will start their giving their efforts in this direction, the society will definitely be more happier than before. And so, and I think I have made so many points. Like now it's so much late and everyone will be become bored, I think. Sorry for that. So just think about this thing, that why we should control our population. And start with it by yourself, start with by your family, start with your society. Then it can be controlled. And feel people and give the equality in the society, everyone, whether it is girl or whether it is boy. Because until that happens, the society is not going to be in that position in which we want it. So thank you for watching this video.